want next 30 years a systematic program for our schools, for our education system. We want SOPs to be framed, we want regulations to be formulated, but they are stable, they are community friendly, they are student friendly. No doubt about this. Certainly, we don't want every chair should change the rules and regulations. We have witnessed it. If you see medical colleges, if you see these B.Ed colleges, the decline of B.Ed colleges, if we see even the graduation, now we have to do graduation and we have to go to outside colleges for graduation. We have to go to Delhi, we have to go to Bangalore, we have to go to other places of our country. Imagine we have to make such an ecosystem in place, which will certainly make strong rules, strong regulations, but absolutely that will be in consensus with it is another partner, that is the private sector. So we cannot ignore, we cannot make rules, we cannot make regulations, we cannot make which are not to be implemented then afterwards. So that's why that part is to be taken care. We need our involvement in such things that will be treated as knowledge partners. It should not be event oriented, it should be system oriented. It should not be firefighting issues. It should be a policy should be drawn up. And if we understand, we have been recently visiting DIDAC conference in Delhi. I will tell you what is happening in the next future classrooms. It is, I think it will take us 50 years to reach to those stages. And government, despite having, there are two pillars. One is government, another is the private sector. 14 lakhs 50,000 students are studying in the government sector. 13 lakh students are studying in the private sector. Government has every facility. First, their selection is wonderful. The best teachers go to them. Imagine they have diets, they have SRTs, SERTs, then they have everything in place. And we, all men and machinery are with the government. Government is one pillar, one player with us, and we are the another player. And we are playing a match on a field where the umpires are coming from the government sector itself. We are being judged by the government itself about our rules and regulations. So NEP is not talking about this. NEP on the part 8, schedule 8, chapter 8 is asking that a statutory body should be coming into force. We should regulate the government as well as the private sector. So इस डिस्कशन को, बोर्ड की कॉस्टिंग को हम आज डाई डाउन करना चाहते हैं. आज बुक्स सबके लगी हैं, छुट्टियां भी हो गई. अब हमें क्या करना है? शैल वी रूल एंड नेक्स्ट ईयर ये फिर जून, अगस्त, सितंबर में, नवंबर में फिर ये प्रॉब्लम होगी? नो, वी डोंट वांट दैट. वी वांट गवर्नमेंट शुड मेक अ कमिटी, टेक द ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, रिव्यू द थिंग. वी डोंट नीड बोर्ड बुक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर जहां जहां पे जैसे कश्मीरी है, उर्दू है, उसमें अगर वो कंटेक्सचुअलाइजेशन करेंगे, नो डाउट. इवन हिस्ट्री में कुछ पोर्शंस हैं या ज्योग्राफी में कुछ पोर्शंस हैं, कंटेक्सचुअलाइजेशन करें. जैसे कि एनईपी बोलता है कि लोकल को भी पढ़ाना है, तो एनईपी के नॉर्म्स के हिसाब से भी हमें उसको जोड़ना है, मगर वो टीचर करेगा. मगर हमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर में टीचर आता है, ही इज फॉर अ टाइम देयर, बट वो जो वहां पे आता है उसकी ट्रेनिंग्स इतनी नहीं होती है. मैक्सिमम 98% स्कूल्स में जो होती हैं allied than the elite schools who are doing lot more impetus on the trainings on this thing, and they have the benchmarks. अब मैंने एक बेंचमार्क बना दिया. उस बेंचमार्क को मैं नीचे लवर नहीं कर सकता हूं. मेरे स्कूल्स में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी हो, there's a benchmark established, and we are doing much better than these government schools. And government, so उस चीज को आगे लेना है, उसको पीछे नहीं खींचना है. रैशनलाइजेशन के साथ हैं हम. उसके लिए हमने तजवीज की कि आप कमेटी बनाइए, जो पब्लिकेशंस आप फाइनल करेंगे, जिन पब्लिकेशंस को आप अप्रूव करेंगे हम वही लगाएंगे. जो प्राइसिंग आप वहां पे उनके साथ फाइनलाइज करेंगे, क्योंकि पब्लिकेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ी प्राइसिंग डिटरमिन करते हैं. आप
पब्लिकेशन के साथ प्राइसिंग फिक्स कीजिए, आप उनकी क्वालिटी देखिए, आप उनके इनपुट्स देखिए, आप उनके आउटपुट्स देखिए, हमें बताइए कि ये रिकमेंडेड बुक्स है, ये लिस्ट है बुक्स का, आप इसमें सजेस्टेड रीडिंग्स एंड रिकमेंडेड रीडिंग्स कर सकते। बेसिक बुक्स हमारी एनसीईआरटी को रिकमेंड कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उर्दू, इंग्लिश, ये चीज है। बाकी वी आर शॉर्ट ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ग्रामर है इंग्लिश में, बोर्ड में के पास नहीं है, वी नीड some player to come in. जैसे कुछ वर्कबुक्स है, we need somebody to come over there. We need Kashmiri, for example, NCERT के पास नहीं है, we need to come play into that. So there are particular domains. हम एक चीज चाहते हैं गवर्नमेंट को कि और लोगों को भी, कम्युनिटी को भी, कि ये जो माफिया का टैग बार बार देते हैं कि इवन एक कोई कश्मीर विजडम करके है, नीचे मैंने देखा कि उसमें लिखा था माफिया, बुक माफिया के कुछ माफिया। तो आई विल जस्ट पुल, एक मिनट मैं और लूंगा, देन आई विल क्लोज दिस। मसला ये है कि जो ये इन्होंने कर दिया है, मुझे इनका एक ही चीज गवर्नमेंट का चाहिए कि जो यहाँ पे वो मॉडल इंस्टीट्यूशंस भी हमें दिखाएं। हमने मॉडल इंस्टीट्यूशन दिखा के रखे हैं इनको, आप देखिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हो, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हो, यहाँ पे पटन साइड में हो, श्रीनगर में हो, आप देखिए अक्रॉस राइट फ्रॉम टींटवाल टू plains of Jammu, we have proved our worth on ground zero. We have shown that we are doing best. सब सिर्फ एक ही चीज है कि इसको करनी है। दूसरी बात लास्ट में करना चाहता हूँ, देयर आर सर्टन स्कूल्स जो ये 7,000 की ये बुक सेट है। जनाब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ, जो इसका ये 7,000 का सेट है, ये करिकुलम ड्रिवन है, ये कोई बुक की प्राइसिंग नहीं है। बुक की प्राइसिंग ओवरऑल अगर उसको 4,000 या 5,000 या 6,000 है, अगर इसका बाइफर्केशन हम करेंगे, 65% विल बी द बुक कॉस्ट, 30% विल बी द कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग्स एंड हैंड होल्डिंग इज द इंस्टीट्यूशन द पब्लिशर इज डूइंग फॉर द स्कूल, and 5% will be the support system they are providing to the school to enhance its benchmarks. अब मैंने 15 साल से बेंचमार्क अपने स्टूडेंट्स के लिए खड़ा कर दिया है, वो कैम्ब्रिज पढ़ा रहा है, वो कुछ कोई बोर्ड पढ़ा रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ इमीडिएटली यू कम डाउन, अब आप इसके 0 पे आ जाओ, यहां से स्टार्ट कर लो। सो वी शुड रिविजिट, हर किसी का डिफरेंट है। देयर आर नोटिफिकेशन जो आई हैं वो टोटली समझ नहीं आ रहा है कि किस बिना पे हुई है। दैट इज द थिंग आई विश देखिए सर, बोर्ड यही मैं कहता हूं कि अगर हम 70 साल का हिस्ट्री देखेंगे अनंतनाग में या जहां पे आप लोगों ने ये सुना है, हमें बोर्ड, हमें गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन दिखा के दे जो उन्होंने 70 साल में बना दिया है। हमारे तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उस पर कार्रवाई की या कुछ किया, वहां पे जाके देखिए कि हम जाते हैं, दे आर द बेंचमार्क्स फॉर अस, वो इंस्टीट्यूशन हमारे लिए बेंचमार्क्स है। हम जाते हैं वहां सीखने के लिए कि कैसे हम अडॉप्ट करें नए सिस्टम्स को, उसमें इनपुट्स लगते हैं। वहां हर कोई क्लासरूम आप देखेंगे दे विल बी IT फिटेड, वहां पे हर वो क्लासरूम का सारा सिस्टम ही डिफरेंट होगा, उस पर इतना इनपुट्स लगता है। तो सर्टेनली जो चीज है वो चीज हमें मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि अगर 70 सालों में किसी ने भी इंस्टीट्यूशन, क्या हमें अब डलहौजी फिर से वापस जाना है? क्या हमें वही हिल टॉप के स्कूलों में फिर से एडमिशन लेना है? क्या हमारे बच्चे अनंतनाग के हक नहीं रखते हैं क्वालिटी एजुकेशन के? क्या हमारे पॉइनियर स्कूल के हक नहीं रखते हैं? क्या हमारे पुलवामा साइड के हक नहीं रखते हैं? सो वी नीड टू हैव अ लुक ऑन दिस कि ये विच हंट नहीं होना चाहिए, बेसिस कॉन्क्रीट बेसिस पे हो और इसको प्रमोट किया जाए रैशनलाइजेशन को, हम उसके खिलाफ नहीं। नजरुल्लाह साहब आपने बात की अभी टेक्स्ट बुक्स की, इसमें दो चीजें हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं है, इवन दे से कि बोर्ड की बुक्स की क्वालिटी, नॉट कंटेंट बट क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क है। दैट्स व्हाई कि वो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल की बुक्स हो। लेकिन पेरेंट्स की ये भी प्रॉब्लम है कि अगर नजरुल्लाह साहब के स्कूल में बुक्स पढ़नी है प्राइवेट पब्लिशर्स, लेट देम बी अवेलेबल इन ओपन मार्केट। क्यों आप इसको बिजनेस बना रहे हैं प्राइवेट पब्लिशर अपने बुक शॉप के साथ, कि आप पेरेंट्स को बोल एक पर्टिकुलर बुक शॉप पे जाए जो अपना कमीशन पहले स्कूल को देता है फिर बुक सेलर को देता है, उसमें बड़ा नेक्सस चल रहा है, 300 करोड़ का नेक्सस है ये, जिसमें ये बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि जो एक पर्टिकुलर बुक शॉप के साथ लेट यू कीप योर बुक्स अवेलेबल फर्स्टली ऑन योर वेबसाइट। that I will answer this question, then I will come to you। मैं थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पे ये रिजवान साहब की बात को
इशू है इस डाटा के बेस पे आप कहते 300 करोड़ नहीं, का नहीं, है, 300 करोड़ total नहीं कोई नहीं सर नहीं let us put the records on correct let us put the records on the सर मैं एक चीज बनाना चाहता हूँ कि let us do one very important thing ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मिनट अब इसमें एक चीज है जैसे हमारा रिजवान साहब ने कहा कि जनाब why is not it available in this is what we are here now we are not against कि that it should not be available it should be रूम्स में अलग से कान में बोला जाए ये अवेलेबल है कि नहीं हम तो इसको ओपन करना चाहते हैं अब वी वांट नाउ और इसके पहले भी हम चाहते हैं कि एक रैशनलाइजिंग सिस्टम हो अगर बुक्स का लिस्ट आए हम तो पहले एनसीईआरटी को पिच करते हैं कि हमारे पास एनसीईआरटी अवेलेबल हो बिकॉज कॉस्टिंग वो बोर्ड्स की बुक से भी कम है क्वालिटी उससे बेहतर है कागज की क्वालिटी है तो ये पहले रिजॉल्व हो फिर उसके बाद में हमारे स्कूल में अवेलेबिलिटी रहे हम रिकमेंडेड बुक्स बोर्ड अलाउ करें कि हाँ जी ये इतने पब्लिकेशंस हैं ये इतने हैं ये नेक्सस खत्म हो जाएगा लेट बोर्ड वो तो सर आप लोग करना है उसमें गवर्नमेंट का कोई नो वी हैव नथिंग टू डू आप मेरे सवाल को समझिए मैं कह रहा हूं सपोज यू आर टीचिंग 5 बुक्स एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने से पहले पुट द लिस्ट ऑफ द बुक्स ऑन योर स्कूल वेबसाइट So we are not. Let the parents know कि कौन सी books बच्चों को पढ़नी है. They can purchase it online. They can purchase them from open market. रिजवान सर जब एक ऐसा nexus होगा नहीं कि एक particular. सर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ. I am putting. No, we don't. नहीं मैं बिल्कुल absolutely we are that is what we want. We will I think will the fraternity the community will never. पहले तो मुझे ये है कि जो भी parent ये complaints करता है उसका भी एक देखना चाहिए पहले रिकॉर्ड कि उसका 2 महीने 3 महीने का फी क्लियर है कि नहीं है बिकॉज अगेन इट कम्स आउट टू बी दो जिसका 1 साल का फी क्लियर होता है वही ज्यादा परेशानी करता है again mixing questions. My question is simple. Keep your books. I'm coming to that. We are not only there will be no complaints. Absolutely that Yes. अब मैं वही मेरा वही है कि अब फिर से हमारा वही चीज रहेगा हम तो इसको क्लोज डाउन करने चाहते हैं कि कोई भी उंगली ना उठाए हम चाहते हैं कि बोर्ड ही पब्लिशर्स को जॉट डाउन करे कि ये वाली पब्लिशर्स ओके हैं मान लीजिए साइंस में उनने 15 टाइटल्स ओके कर दिए 20 टाइटल्स ओके कर दिए 50 टाइटल इन 50 में आप ले सकते हैं प्राइसिंग तो आप वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है अभी जो मुझे देखने को लगा कि जैसे स्कूल वाले घर में प्राइसिंग लगा रहे हैं तो ये ऐसे फीलिंग आ रही थी लेट द बोर्ड नेगोशिएट विद देम द प्राइसिंग द क्वालिटी दिस थिंग हमें बोर्ड ये बताए या कमेटी गवर्नमेंट की कमेटी बने कि ये पब्लिकेशंस हैं ये अप्रूव्ड हैं वही हम अपने वेबसाइट पर डालेंगे लेट देम पब्लिश एंड परचेज इट फ्रॉम द ओपन मार्केट